پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ ازلی اور ابدی خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے مبارک، خوبصورت اور افضل ترین اسم اعظم میں آج آپ تمام ناظرین کو جو فیس بک کے پیجز پر، یوٹیوب پر اور مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، آپ کو اور آپ جو ہماری اسکائپ آئی ڈی پر اس وقت موجود ہیں اور واٹس ایپ گروپس میں بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں یہ خاکسار خادم سلام عرض کرتا ہے اور ہماری اس آئی ڈی پر کی گئی خداوند کے پرستاروں کے ذریعہ کی جانے والی پرستش کے لیے میں خداوند یسوع کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ کاش کہ آپ جو ناظرین ہیں آپ بھی ہماری اس آئی ڈی میں شریک ہو سکے۔ ضرورت ہوئی آئی ڈی کی تو پلیز آپ ٹیکسٹ کر دیجئے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ ہمیں جوائن کر سکیں۔ آج کے دن میں آپ کے ساتھ مل کر کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس کی آخری کتاب جو آخری زمانے سے متعلق ہے آپ کے ساتھ مل کر سیکھ رہا ہوں۔ بہت سی باتیں اس سے سیکھی ہے اور بہت ساری باتیں ابھی مزید ہیں جو ہمیں مزید سیکھنا ہے، لیکن آج آپ کے ساتھ مل کر میں یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے یا ملہم خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ اور اس کے 21 باب اور اس کی 19، 20 اور 21 پر غور کروں گا، کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم نے گزرے ہفتے آیت 18 پر غور کیا تھا، اگرچہ 18 کا بھی ان آیات سے تعلق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 18 سے 21 تلاوت کیے دیتا ہوں، لیکن ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اس لیے، لیکن 19، 20 اور 21 پر آج اس مختصر سے وقت میں بات کریں گے۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، مکاشفہ 21 کی 18 سے، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشیب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشیب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبر جد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت کی، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے۔ ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی۔ ہم نئے شہر یروشلم، ایک نئی دنیا جیسے ہم نے دیکھا تھا، نہ جس کو ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا، نہ ہمارے خیال میں آئی اور نہ ہماری سوچوں میں، خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے ایسی جگہیں تیار کر رکھی ہیں جس کو ہم
इस इंसानी महदूद सोच और महदूद जहन के मुताबिक जान भी नहीं सकते। ताहम मैं ये जरूर कहूंगा कि असल में ये खुदावंद खुदा की और उसकी उस कलीसा की जो उस नए यरूशलेम में होगी, रास्तबाजी जो खुदावंद की तरफ से है, पाकीज़गी और खुदावंद के जलाल को ये बातें जाहिर करती हैं कि वो किस कदर हसीन और खूबसूरत नया शहर यरूशलेम होगा। नए लोग, नया शहर जो अबदी खुदा अपना खेमा अपने लोगों के बीच में लगाएंगे। लेकिन याद हो तो मैंने गुजरे हफ्ते ये कहा था कि इन अल्फाज और इन आयात के मुताबिक हम इंसानी इल्म के तहत किसी हद तक उस शहर का, उसकी बुनियादों का, उसकी शहर पनाह का, उसके दरवाजों का जिक्र कर सकते हैं महदूद जबान में। लेकिन याद रखिए, उस शहर का असल नजारा, असल जलाल, असल खूबसूरती, पाकीज़गी, रास्तबाजी जिसमें होगी, वो तभी होगा जब हम उस शहर में दाखिल होंगे बशर्ते के किताब हयात में हमारे नाम लिखे हों तो। और कोई भी शख्स, खा किसी ही रिलीजन, किसी ही रंग और जोग्राफियाई एतबार से खा किसी ही बर्रे आजम का क्यों ना हो, जब वो मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है, ये मजहब नहीं है। Christianity is not a religion. Christianity is a relationship with God the Father through Jesus Christ. तो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमारा खुदा के साथ एक नाता और रिश्ता बंध जाता है। इस बात को जानने की जरूरत है। हम मज़ाहिब के तब्दील करने या नहीं करने की बात ही नहीं करते। हम इस पैगाम को कि मैं गुनहगार हूं, मैं खुद अपने पापों के एतबार से अपने आप को बचा नहीं सकता था, लेकिन शुक्र हो कि वो अर्श वाला इस फर्श पर आ गया और मेरे पापों की खातिर अपनी जान सलीब पर बलिदान कर दी है। मर गया, दफन हुआ और फिर जी उठा, और जो आज भी जिंदा है, मेरा इफ्जी, मेरा कुफारा, मेरा फिदिया, शुक्र करते हुए उस पर ईमान लाने और दिल का दरवाजा खोलने के जरिया से कि ऐ खुदाबंद, पाक रूह की सूरत में आप मेरे दिल में आ जाए, अपनी रूहानी सिम मुझ में इंस्टॉल करें, मेरी जिंदगी का रिमोट आप ले लें, ताकि आइंदा के लिए खुदावंद में आपके लिए जीने वाला या जीने वाली हो सकूं। इस पैगाम को कबूल करने, रास्तबाजी के लिबास से जो मसीह पहनाते हैं, मुलब्बस होने के जरिया से, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब तक हम इस फर्श पर हैं, जमीन पर हैं, रास्तबाजी के साथ चलने के सबब से ही, खुदावंद की फरमाबरदारी करने के सबब से ही उस नए यरूशलेम में हम दाखिल हो सकते हैं। दर हकीकत मुकद्दस यूहन्ना ये बयान करते हैं कि जो खुदा के लोग हैं ना, धर्मों से निकलकर मसीहा के चरणों में आ गए,
खुदा की निगाह में उनकी कदर कीमत कितनी ज्यादा है। अगर हम एक मजहब से निकलकर किसी दूसरे मजहब में दाखिल हो गए और अपने आमाल पर तकिया करते हैं कि इनके सबब से मेरी निजात होगी, अगरचे आमाल बुरी चीज नहीं, क्योंकि ईमान बगैर आमाल के मुर्दा है, लेकिन सिर्फ आमाल कुछ भी नहीं, गैरकों में भी नेक आमाल करती हैं, हमारे लिए इसलिए कुछ भी नहीं जब तक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना लाया जाए। इसलिए तो मैं ये बात कहता हूं कि मुकद्दस यूहन्ना हमें ये याद दिला रहे हैं कि खुदा के हुजूर खुदा के लोगों की कदर कीमत कितनी ज्यादा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस नए शहर यरूशलेम का जलाल ऐसा जलाल होगा जिसकी तफसीर नातमाम है और इंसान की वोकैबुलरी, अल्फाज, डिक्शनरी खत्म हो जाते हैं, लेकिन लगता है वहां से खुदा के जलाल के बयान का आगाज होता है। यह कोई आम बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, खुदा ने ऐसी चीजें अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर रखी है जो कभी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और हमारी सोचों और ख्यालों में कभी नहीं आई। नेक्स्ट, ये जो आयत 18 और 19 और इवन 20 आयत में भी जिन पत्थरों का जिक्र है, शहर भी सोने का और शहर पनाह की बाबत भी हमने बाहम मिलकर सीखा था। शहर की बुनियादों की बाबत के किस तरह जवाहिर से वो आरास्ता है और फिर उन बुनियादों के बारे में 12 पत्थरों का जिक्र है। लेकिन इसके साथ साथ शहर खालस सोने का था, जो क्रिस्टल क्लियर, आप शफाफ ऐसा कि उससे आर पार देख सकते हैं, रोशनी आती है। लेकिन उसके साथ साथ हम जब 21 आयत में जाते हैं तो वहां बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उस पर मैं अभी थोड़ी देर ठहर कर आता हूं। लेकिन याद रखिए, अगर मैं इन 12 पत्थरों पर एक एक पर बात करता चला जाऊं कि ये कितनी अहमियत के हामिल हैं, तो बाय द वे मैं पत्थरों से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, याकूब और नीलम और फलाना अकीक वगैरह, मैं इनसे इतना वाकिफ नहीं। लेकिन अगर आप जरूरत महसूस करेंगे तो मैं इन 12 पत्थरों पर अलग अलग स्टडी करके इनकी अहमियत की बाबत बता सकता हूं, लेकिन मैं इनकी इतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं करता। सबब यह है कि ये तमाम के तमाम जितने भी पत्थर हैं, ये तमाम के तमाम इस बात के हामिल हैं कि इनकी खासियत मुख्तलिफ है और हर पत्थर का रंग भी मुख्तलिफ है और इंसानी अक्ल और इंसानी सोच इनको समझ भी नहीं सकती। और चूंकि इंसानी सोच और अक्ल इनकी बाबत के वो किस तरह वहां पर लगे हुए हैं बुनियादों में समझ नहीं सकती, तो फिर इंसानी अक्ल और सोच उनको बातल भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बातें हैं। तो हमें इस बात को जानना जरूरी है कि जो इंतहाई कीमती तरीन पत्थरों से ये जो शहर बना होगा, शहर पनाह की बात करता हूं,
शहर पनाह की बुनियादों की बात करता हूं, सोने का शहर, वो गैर मामूली शहर होगा जिसकी बाबत हम सोचने से भी आजिज है। तो ये तमाम पत्थर उसके इंतहाई आलीशान होने की तरफ इशारा करते हैं। फिर से कहूंगा, जान लीजिए कि खुदा के लोगों, मोमिनीन और मसीह के लहू से खरीदे हुए लोगों की खुदा की निगाह में कितनी बड़ी अहमियत है कि खुदा किस तौर पर अपने लोगों के लिए एक खूबसूरत मकाम तैयार किए हुए है। और मैं फिर से कहूंगा, मेरे पास इवन दुनिया के, मैं तो तालिब इल्म हूं, लेकिन उलमा के पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं इस खूबसूरत तरीन शहर, शहर पनाह और इसकी बुनियादों और इसके दरवाजों पर बात करते हुए। लेकिन जो आयत 21 है, चूंकि 18, 19, 18 पर हमने बात की भी थी, और 18, 19 और 20 में ज्यादातर उन पत्थरों का ही जिक्र है जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं। और बाय द वे, यह भी बात याद रखने की है कि खरूज 28 बाब में हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो सरदार काहिन होता था, उसके सीना बंद पर वो 12 पत्थर होते थे, और वो 12 पत्थर इस्राएल के 12 कबाइल की नुमाइंदगी करते होते थे खुदा की हजूरी में। क्योंकि जो सरदार काहिन होता था वो इंसान और खुदा के बीच में एक दरमियानी की हैसियत रखता था। इसलिए नए अहद में मसीह मेरे और आपके और खुदा के बीच में दरमियानी मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। वो हमारे लिए दरमियानी बने हैं। और साथ ही साथ ये 12 बुनियादें, मैं फिर से कहूंगा, उन रसूलों की बेशकीमत तालीम, अहद अतीक के अंबिया की बेशकीमत तालीम, चूंकि वो बनी इसराइल की नुमाइंदगी कर रहे थे, 12 कबाइल और 12 रसूलों और अंबिया की तालीम पर, चूंकि ये शहर जहां पर खुदा के लोग होंगे तामीर हुआ होगा, जिस सबब से उसकी कीमत का अंदाजा हम इंसानी जबान और लुगत यानी जबान से नहीं कर सकते। सेकंडली, जब हम 21 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था, और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानिंद खालिस सोने की थी। आमीन। यह आयत बड़ी गौर तलब है, इसलिए मैं कुछ टाइम इस पर थोड़ी देर के लिए ठहरना चाहता हूं। एक दफा फिर देखिए, 12 दरवाजे थे और हर दरवाजा एक मोती से बना हुआ था, एक ही मोती से। आप अंदाजा कर लें कि उस शहर यरूशलेम के जो 12 दरवाजे हैं, एक दरवाजा और वो पूरा दरवाजा एक ही मोती का। ऑफ कोर्स हमने तो छोटे छोटे मोती देखे हैं, लेकिन याद कीजिए, वो जिसका सोना है, जिसकी चांदी है, जंगल और जंगल के दरख्त और सारे चौपाए हैं, उसके लिए जो इन तमाम मोतियों का और कायनात का और सोने और चांदी का मालिक है, यह कोई बड़ी बात है कि वो एक मोती का एक एक दरवाजा बनाए? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे खुदा के लिए
یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسری بات, اس شہر میں آپ نے آیت پر غور کیا ہوگا. ایک تو یہ کہ 12 دروازے, ہر دروازہ ایک موتی کا, اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ شہر کی سڑکیں, نو, شہر کی سڑک کا بیان ہے. یعنی ایک ہی سڑک کی یہاں پر بات ہو رہی ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بھی ہے. اور بائی دا وے 22 باب کی پہلی آیت, پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. یہ وہ صداقت ہے جو یہاں ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سڑکیں نہیں بلکہ ایک ہی سڑک ہے جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. یہ جنرل بات کر رہا. رہی بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ ہر دروازہ ایک موتی کا تھا. جب ہم موتیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ کہ موتی در حقیقت کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے. کیسے؟ میں کلام سے حوالہ دیتا ہوں. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک, اس کا 13 باب اور اس کی 45 اور 46 دو آیات. متی 13, اس کی 45 اور 46, غور کیجئے گا. پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا. ہاللویا. وہ سوداگر کون ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا؟ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. میں اور آپ نکمے بے وجود خدا کے نام پر دھبا گناہوں میں لت پت تھے, لیکن خدا کی نگاہ کرم کہ اسے مجھ میں اور آپ میں, اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو ایک بیش قیمت موتی نظر آیا ہے. ہم اپنے آپ کو پاپوں سے لت پت پا رہے تھے, لیکن اس کو ہم میں ایک بیش قیمت موتی نظر آ رہا تھا. اس لیے تو ہم یہ بات کہتے ہیں. اور آگے جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا, وہ آپ ہیں میرے بھائی اور میری بہن, آپ ہیں اگر مسیح یسوع میں ہیں تو. چرچ میں اور ڈینامینیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسیح میں ہونے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر لکھا ہے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا. اس تمثیل کے سمجھنے کے لیے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کیسے خداوند نے اپنا عرش, مقام, مرتبہ, وہ جو خدا کے برابر تھا, اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا, اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا,
اور یہاں تک خدا باپ کا فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے، اور خدا باپ نے بھی اسے سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو تمام ناموں سے افضل اور اعلی ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے۔ یہ بڑی اہم ترین صداقت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری بات، ہم نے پتھروں کے بارے میں بات کی ہے 18 اور 19 اور 20 آیت میں، اور اس سے پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات، پتھر میں بھلے یہ کتنے قیمتی پتھر تھے، اس میں اور موتی میں بہت فرق ہے۔ موتی پتھر نہیں ہوتا اور پتھر موتی نہیں ہوتا۔ یہ بات جاننے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد کریں کہ جو پتھر ہوتا ہے نا، وہ اس زمین پر ہے۔ آج کی دنیا میں، ماضی میں بھی، آج تک پتھر زمین پر ہوتے ہیں، خشکی پر، لیکن جو موتی ہوتا ہے نا، وہ سمندر میں ہوتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے تو یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ اکثر اوقات مکاشفہ کی کتاب میں سمندر لوگوں کے جمع غفیر کو پیش کرتا ہے۔ او لا تعداد لوگ، قومیں اور امتیں اور قبیلے، اور اس سمندر میں موتی ہوتا ہے۔ وہ موتی میرے بھائی تو ہے، اور میری بہن تو اور میں، بشرطے کہ مسیح میں ہوں تو۔ اس دنیا کے اس بحر بے کنار سے اس نے مجھے اور آپ کو چن لیا اور الگ کر لیا۔ لیکن ایک اور بات یہاں پر کہتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ موتی دراصل ایسے ہی سمندر سے نہیں ملتا یا ایسے ہی نہیں بن جاتا۔ ایک حیوان ہے چھوٹا سا جس کو ہم سیپ کے نام سے جانتے ہیں۔ عام طور پر وہ ہاتھوں کے پنجے کی طرح بند ہوتا ہے، ہم سیپ یا سیپی بھی کہتے ہیں۔ اور محققین یہ کہتے ہیں کہ جب اس سیپ کے منہ میں ریت کا ذرہ آ جاتا ہے نا، اس کے لیے بڑا پینفل ہوتا ہے، درد اور تکلیف اس کے منہ میں جیسے اس کو وہ کاٹ دیتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ بہت ہی نازک حیوان، جانور۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے سیپ؟ وہ اپنے منہ کے لعاب یعنی محلول سے اس ذرے کو لپیٹتا ہے تاکہ اس محلول سے وہ ذرہ لپٹ جائے، اور سبب یہ ہو کہ پھر میرے منہ میں ہو بھی نا تو مجھے رگڑنا پڑے، میرے منہ کو مزید زخمی نہ کرے۔ اور پھر وہ جو محلول سا ہوتا ہے، وہ جو لعاب اس کے منہ میں ہوتا ہے، اس لعاب کے سبب سے وہ ریت کا ذرہ ایک بیش قیمت موتی بن جاتا ہے جو حیوان کے منہ سے نکلتا ہے۔ چھوٹے سے حیوان کی میں بات کر رہا ہوں۔
तब वो मोती मोती बनता है। रेत के जर्रे पर लबादा लुआब, उसका महलूल उसके मुंह का जब उस पर लपेटा जाता है तो। और याद कीजिए मेरे भाई और मेरी बहन, मैं और आप ऑटोमेटिकली मोती नहीं बनते। हम तो वो रेत का जर्रा थे। मैं अपनी बात करूंगा, मैं आपके लिए भी तकलीफ देने वाला आपका दुश्मन। और जहां कहीं मैं था, मैं फने खान अपने आप को मजहबी तौर पर समझता था, और मैं एक मजहबी होने के बावजूद यूं लगता है जैसे मुझे कांटे लगे हुए थे, लोगों को जख्मी करता था। लेकिन खुदावन ने मुझ पर तरस खाया, और जो उस जर्रे पर लुआब लपेटा गया ना, वो जर्रा मैं और आप है। वो लुआब मसीह यसू का लहू है, जिसके वसीला से मैं और आप पाक किए गए। मसीह की रास्तबाजी का लिबास मैंने और आपने पहन लिया है। मसीह की पाकीज़गी हमें हासिल हुई है। यह वो सदाकत है। मोती ऐसे ही नहीं बनते। मसीह ने अपनी जान मेरी खातर और आपकी खातर दी है, ताकि हम अपने आप को उसके सुपुर्द करें, एक बेशकीमत मोती बन जाएं। यह मोहब्बत खुदाबंदी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी कीमत के अदा किए जाने के बावजूद, बजाय इसके कि हम अपने उस मालिक और उस खुदावंद की सेवा और भगती और मनादी करें, अफसोस कि हम अपने पेट को अपना खुदा बनाए बैठे हैं और गोरों और कालों के आगे बिकते हैं। हमारे ईमान की गैरत कहां गई? किसने हमें मोल लिया? किसने हमें अपनी रास्तबाजी पहनाई? और लगता है कि आज हम यीशु मसीह को कैश कर रहे हैं और अपनी बादशाही को कायम करने की कोशिश करते हैं, ना कि मसीह की। अपनी डिनोमिनेशन, अपने चर्च, अपनी मिशन, अपने बाइबल स्कूल, अपना फलाना 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 फलाना। और जो गैर कौम के लोग हैं, मसीह के बगैर मर रहे हैं। हमारी एक एलएस सुबह मीटिंग थी, सैटरडे सुबह 7 बजे ऑनलाइन जूम पर, और मुझे जब शेयर करने का कुछ इत्तेफाक हुआ थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो मैं कह रहा था हमारे मुल्क के लोगों के लिए दुआ कीजिए, हम लीडर्स के लिए दुआ कीजिए, हमारी कलीसियाओं के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि गैर कौमों के पास इंजील लेकर जाने, खुशखबरी सुनाने के एतबार से हमारी गैरत जाती रही है। हम अपने आप को एवेंजलिकल क्रिश्चियन तो कहते हैं, लेकिन एवेंजलाइजेशन के काम से हम कन्नी कतराते हैं। कैसे कौमें और उम्मतें खुदा बाप की हुजूरी में आएंगी और वो भी बेश कीमत मोती बनेगी, जदों अपने ही चिराग तले अंधेरा है गए, जदों अपनी कुप्पी विच तेल नहीं, ते की होवेगा? हम अपने अपने इन हदबंदियों से निकलकर कुछ कर दिखाने वाले हो। ये जो हमारी मीटिंग्स है ना ऑनलाइन, खा वो जूम पर हैं, खा वो स्काइप पर हैं, खा फेसबुक पर हैं, वगैरह 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 वगैरह, ये हमें रिचार्ज करने के लिए हैं। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। नो एंड नेवर।
काम उस वक्त शुरू होता है जब ये मीटिंग एंड होती है, तो कि उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग तक मैं और आप क्या करते हैं। यह है सवाल जो खुदावंद मुझसे और आपसे पूछते हैं। और अगर उस दौरान हम लोगों के लिए हौसला अफजाई का सबब नहीं, इंकरेजमेंट का सबब नहीं, दुआ नहीं करते, जाते नहीं, एवेंजलिज्म नहीं करते, गैर कौमें खुदावंद को जानती नहीं और समझते हैं नहीं वो मैनू मार देंगे। ओ भाई, इब्तदाई कलीसिया से लोग लेकर आज तक मरते चले आए इंजील का पैगाम सुनाते हुए। क्या मसीह ने कहा था कि मेरे पीछे आने से तुम्हें फूलों की सेज मिलेगी? ना। वो जो खुद दुखी हुआ उसने कहा तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा मेरी खातिर। जरूर है तुम बहुत से दुख उठाकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मेरी बातें बाज़ औक़ात थोड़ी कड़वी सी हैं, होती हैं, लेकिन आराम आ जाता है अगर हम इन गोलियों को खा लें तो मेरे अजीजों, ये दरवाजे खुदा कलीसिया के जरिया से खोलता है कि वो जो अभी दाखिल नहीं हुए वो वहां पर दाखिल हूं। ये कलीसिया की, चर्च की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों के लिए दरवाजे खोलें। इन मोतियों की जिम्मेदारी है ताकि वो उस बादशाही में दाखिल हूं जो खुदा ने उन लोगों के लिए भी तैयार की हुई है। खुदावंद मुझे और आपको अपनी कीमत के अंदाजा लगाने का फजल अनायत फरमाए। पौलुस कहते हैं तुम कीमत से खरीदे हुए हो, अपने नहीं, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और पतरस कहते हैं तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं, बल्कि एक बेऐब बर्रे मसीह यीशु के बेशकीमत खून से हुई है। हालेलुया। हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करने वाले हों। हम अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। आसमानी बाप, शुक्रगुजार हूं आज के इस कलाम के लिए कि आपने यकीनन हमारी हौसला अफजाई भी की, हमारी कीमत का अंदाजा करने के लिए भी आपने हमें सबक दिया और चैलेंज भी कि हमें क्या करना चाहिए था और हमने नहीं किया। खुदा बाप, हमारी सुस्ती और काहली को मुआफ कीजिए और फजल बख्शिए कि माजी में जो नहीं किया अब वो कर सकें आपके जलाल के लिए। रास्तबाजी की पोशाक से मुलब्बस रहें, तारीकी की कुव्वतों से दूर रहें। दुनिया खा क्या करती है डजंट मैटर। हमें फजल बख्शिए कि हम आपकी फर्मा बरदारी में हो चले और उस इनाम के लिए जो आपने हमारे लिए रखा हुआ है हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और ए आसमानी बाप, आज इस कलाम के वसीला से कोई भी मेरे अजीज भाई और बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बेटे और बेटियां अगर आपके बगैर हैं, आपको अगर अभी तक अपना दिल नहीं दिया, तो मिन्नत करता हूं पाक रूह की कुदरत से उनके दिलों और सोचों को तब्दील कीजिए कि अपने आप को फुली आपके स्पुर्द करें। बीमार शिफा पाए, बदरू गिरफ्तार आजाद हूं, जिनके हालात अच्छे नहीं वो हालात उस्तवार हो जाए, जो जॉबलेस है उनके लिए जॉब्स के दरवाजे खुल जाए, जो शादीशुदा है और बे औलाद हैं उनके लिए औलाद का इंतजाम आपकी तरफ से हो,
जहां रुपए पैसे की कमी है, यीशु के नाम से बरकत आए, लानतें मौकूफ हो जाएं और बरकत के दरिया बहना शुरू हो जाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदाबंद के वसीला से। आमीन एंड आमीन। अजीजो खुदाबंद आज इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी खूब बरकत बख्शे, अपनी फरमाबरदारी में ले चलें, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी से खुदावंद के नाम को अब्दुल आबाद जलाल मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।